Hi everyone, how are you all? Myself Ankit, welcome you in the Physics Coach. Today we will learn a very important lecture of thermodynamics and we will cover a very important topics, that is isobaric process, isochoric process, adiabatic process and polytropic process. So बच्चों, previous lecture में I tell you regarding the isothermal process. I hope you learn interesting thing जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी. You learn in this lecture too many interesting things. So let's start this discussion. First, we will cover isobaric process. Isobaric, clear? Isobaric process देखिए नाम से समझ आ रहा है. आप लोगों ने क्लास 12th में जब आप तैयारी कर रहे होंगे, क्लास 12th में कुछ थोड़ा सा पार्ट है, बट मैं आपसे यही कहूँगा कि क्लास 11th में इसका सबसे ज़्यादा पार्ट है. सो आइसोबेरिक मीन्स आइसो, हेयर आइसो मीन्स सेम. बार समझाओ, बार किसकी यूनिट है? प्रेशर की. सो इट मीन्स हेयर सेम प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट. यानी P कांस्टेंट जहाँ हो जाए, a process which happen when pressure is kept to be constant, then that process is known as isobaric process. Process means change of state. Clear? Now we will understand कि ये प्रेशर जो है, प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहता है. आप लोगों ने इसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया होगा. W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1. आप लोगों ने वर्क भी फॉर्मूला ड्राइव कर लिया होगा इजीली. बट नाउ आई विल टेल यू कि ये जो प्रेशर है, हाउ दिस प्रोसेस हैपन, हाउ वी केप्ट द प्रोसेस कांस्टेंट एंड वी आर डूइंग आवर प्रोसेस. क्लियर? विद द हेल्प ऑफ पिस्टन सिलेंडर असेंबली वी विल अंडरस्टैंड दिस concept in a very easy manner. So let's understand. Consider a cylinder. Here this is a piston cylinder assembly and here is some mole of gas. Clear? N mole of gas. Clear? This system is at thermodynamical equilibrium. So we can specify the state of the system. Pressure P1 है, volume V1 and temperature T1. Why am I able to specify the state? Because the system, what is my system? This is my system. Clear? This is my system and this system is not interacting with surrounding. That's why I am able to specify the state with the help of thermodynamic state variable. Clear? इसका इनिशियल क्या है? प्रेशर P1 V1 T1. अब लेकिन मुझे इसको कहाँ पहुँचाना है? आई नीड टू डू प्रोसेस. मुझे एक प्रोसेस करना है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इन दैट वे कि मेरा प्रेशर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट. मुझे अपना प्रोसेस भी करना है, प्रेशर को भी कांस्टेंट रखना है. और मेरा फाइनल कंडीशन क्या होना चाहिए? इसका प्रेशर वही रहे लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाए और टेम्परेचर चेंज हो जाए. क्लियर? समझ आ गया? ये मेरी इनिशियल स्टेट है, दिस इज माई फाइनल स्टेट. Now how we will do this process? Let's understand. देखिए अपने आप तो ये टेम्परेचर बढ़ा नहीं होगा. With the help of certain source we are supplying some heat in such a way and we are doing, this is a dithermal wall. यहाँ से कहीं insulated है. Clear? From here only we are supplying some heat Q and this is a source. This source is the temperature T1 plus dt. We are doing this process in a very slow manner, quasi-static way, so that each and every state will remain in equilibrium. मैंने आपको पूरा पढ़ाया है. Now what happen? जब आप हीट देंगे तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? What happen? देखिए प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपने सराउंडिंग से जितना सराउंडिंग का प्रेशर लग रहा था उतना प्रेशर क्या है? सिस्टम जनरेट कर रहा है. जितना प्रेशर आपका ऊपर से लग रहा है वॉल, ये पिस्टन जो लगा रहा है इसकी जो गैस पर, same pressure is exerted by the
gas molecule over the piston wall. Clear? This is a piston wall. यहाँ समझा है? अब ध्यान से देखिए, we are doing some process, we are doing some work. By doing this process, we are supplying some heat, and in order to change the state, we are supplying certain heat. लेकिन हीट देने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इसका प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा. क्लियर? बट हमको क्या करना है कि इसका प्रेशर बढ़ने नहीं देना. वी डू नॉट वांट आवर प्रेशर टू इंक्रीज. क्लियर? प्रेशर को आपको कांस्टेंट रखना है. तो कैसे कैसे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा? देखिए, जितना हीट आपने सप्लाई किया उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, इसका प्रेशर कुछ इंक्रीज होने वाला होगा. प्रेशर विल इंक्रीज. साइमल्टेनियसली आपको क्या करना है, यू नीड टू डू सम एक्सपेंशन. मतलब क्या है, जिस ऑर्डर में प्रेशर इंक्रीज करे उसी ऑर्डर में प्रेशर डिक्रीज कर जाए. तो फाइनली क्या रहेगा, प्रेशर डिक्रीज. डिक्रीज क्या सेम रहेगा? तो होगा क्या कि जैसे ही मान लीजिए आपने हीट दिया, पिस्टन विल राइज अप. पिस्टन थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा. एंड देयर इज अ वॉल्यूम एक्सपेंशन टेक्स प्लेस. अब वॉल्यूम क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा. क्लियर? तो जैसे जैसे आप हीट को सप्लाई करेंगे, फाइनली यू गेट द वॉल्यूम V2, बट द प्रेशर विल रिमेन स्टिल V1, स्टिल P1. तो स्टिल प्रेशर क्या है, P1. इनिशियली भी क्या था, प्रेशर P1, फाइनली भी क्या रहेगा, P1. क्लियर? बताइए, कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? फाइनली प्रेशर हमारा P1 है, इनिशियली प्रेशर P1. इट मीन्स द प्रोसेस इज आइसोबैरिक प्रोसेस. अब वॉल्यूम देखिए, आपने जैसे ही आपने हीट दिया, टेम्परेचर इंक्रीज, कोलिजन्स क्या होंगे, कोलिजन्स विल इंक्रीज. ड्यू टू इंक्रीज इन कोलिजन, प्रेशर विल इंक्रीज. लेकिन हमको प्रेशर कांस्टेंट रखना है. देन वॉल्यूम विल एक्सपेंड. देयर इज एक्सपेंशन अकर इन द पिस्टन. क्लियर? समझ आ गया? और एक्सपेंशन से क्या होगा, एक्सपेंशन से क्या होगा, देखिए पहले इतना डिस्टेंस था, देखिए पिस्टन का इतने डिस्टेंस में मॉलिक्यूल्स थे, ध्यान है वो. तो अब मॉलिक्यूल को ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा. क्लियर? व्हेन पिस्टन राइज अप, देन मॉलिक्यूल्स गेट मोर स्पेस. देन व्हाट हैपन, व्हेन मॉलिक्यूल गेट मोर स्पेस, देन नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड विल डिक्रीज. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल डिक्रीज. जितना कोलिजन पहले हो रहा था, अब कोलिजन क्या हो जाएगा, कम. तो क्या हुआ, जैसे ही आपने टेम्परेचर राइज किया, पहले कोलिजन एकदम से बढ़े, फिर सडन कम हो गए, तो कुछ हुआ ही नहीं. समझ आ गया कि आपने इतना धक्का आगे मारा, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जितना आगे धक्का मारा आपने उतना ही पीछे से मार दिया, तो इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, ज़ीरो. इन द सिमिलर वे, आपने जितना हीट दिया उससे जितना ही प्रेशर इंक्रीज करा, द सेम प्रेशर यू डिक्रीज सडनली बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम. वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स गेट मोर स्पेस, दे आर मोर फ्री टू मूव. नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, अगेन इट कम्स बैक टू द सेम स्टेट. तो इसका अगर मैं आपसे कहूँ, इफ़ आई ड्रॉ द PV डायग्राम, तो क्या होगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. इनिशियली क्या है, देखो वी आर डूइंग सम वर्क, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है. तो कर्व कैसे बनेगा इसका डायग्राम, PV डायग्राम. हाउ वी विल ड्रॉ द PV डायग्राम, इन दिस वे. क्लियर? ये क्या है आपकी इनिशियल स्टेट, दिस इज द फाइनल स्टेट. यहाँ वॉल्यूम क्या होगा, V1, यहाँ वॉल्यूम क्या होगा, V2. क्लियर? तो इस केस में व्हाट हैपन, योर वर्क इज डन बाय द सिस्टम. W will out, W will be positive. Some heat is given to the system. Heat is given, heat दे रहे हैं और you are getting some work. इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए, इनिशियली ये है, फाइनली ये. कैन एनीबडी टेल मी, क्या बता सकते हैं कोई भी? दिस इज दी आइसोबैरिक expansion, isobaric expansion process. This is the isobaric compression process. Clear? isobaric compression, देखिए compression हो रहा है, समझ आ गया.
तो आइसोबैरिक कंप्रेशन में यू नीड टू सप्लाई सम वर्क, कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा और कुछ हीट बाहर आएगी। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग इन दिस वे। और अगर ऐसे ही समझना है तो आपको वर्क का फॉर्मूला पता ही है, W इज इक्वल टू क्या होता है, P V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम अगर बढ़ेगा देन एक्सपेंशन, फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज करेगा देन कंप्रेशन। क्लियर? किसी कोई डाउट? सो दिस इज द प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस। सो वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस आई विल ड्राइव लेटर, बट आपको समझ में आना चाहिए कि आइसोबैरिक प्रोसेस होता क्या है। कैसा प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के अपना प्रोसेस को कराते हैं। क्लियर? हाउ? यू कैन ईजिली गैस। अब आपको समझना है, क्वेश्चन कभी कोई पूछ ले कि सर कि हम लोग हीट देने से हम लोग वॉल्यूम को एक्सपेंड क्यों हो रहा है, वाई वी आर डूइंग एक्सपेंशन, वाई? बिकॉज कि जो हमको वी नीड टू कीप आवर प्रेशर टू बी कांस्टेंट। अगर आप हीट देंगे देन यू नीड टू काउंटर दैट इफेक्ट। तो आपको उस वॉल्यूम को बढ़ा के क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करने से यू आर काउंटरिंग द इफेक्ट। जितना प्रेशर डीपी बढ़ा, जितना डीपी बढ़ा उतना डीपी आपने वॉल्यूम को एक्सपेंड करने से कम कर दिया, तो नेट प्रेशर क्या रहेगा, स्टिल P1। क्लियर? सो दिस इज द आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोकोरिक। तो देखिए नाम से समझ आ रहा है आइसोकोरिक। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? और देखो मैं इसका एग्जांपल भी दे सकता हूँ। आप लोगों के घरों में क्या है घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप पानी को उबालते हैं, यू आर बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर क्या है, इट्स द आइसोबैरिक प्रोसेस। खाना बना रहे हो, दैट इज द आइसोबैरिक प्रोसेस, बिकॉज वहाँ 1 atm प्रेशर होता है कि नहीं होता। वॉट एवर कुकिंग प्रोसेस यू आर डूइंग एट योर होम, all are occurring at 1 atm pressure, so pressure is constant there. Clear? So that process is known as isobaric process. Next we move to the isocoric process. Isocoric process देखिए नाम से समझ आ रहा है। isocoric means, iso means same, means जिसमें क्या हो, आपका वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्रोसेस करते हैं कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाए। हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी आर डूइंग सम प्रोसेस एंड आवर प्रोसेस इन द प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो देखिए ये मेरा पिस्टन है और मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ स्टॉपर लगा दिए। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स। देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, दिस इज दी सम मोल ऑफ गैस and you are supplying some heat, this is a temperature T1 initially, वॉल्यूम V है, प्रेशर P1 है। हमको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना था तो हमने क्या करा, स्टॉपर लगा दिए, these are the stopper। अब ध्यान से देखिए, मुझे इस वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। आई एम सप्लाइंग सम हीट, क्यों सप्लाइंग कर रहा हूँ, आई एम सप्लाइंग सर्टेन हीट, व्हाट हैपन, टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, आवर प्रेशर विल इंक्रीज। क्लियर? तो देखिए इसका अगर आपको कर्व ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे, PV कर्व। यूर वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर क्या है, बढ़ रहा है। अब ये प्रेशर कैसे बढ़ा, यू आर बाय सप्लाइंग सर्टेन हीट, वर्क क्या रहेगा यहाँ से, 0। दिस इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर? समझ आ गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसे कंप्रेशन मत बोल देना, कोई कहे कंप्रेशन है, कंप्रेशन नहीं है ये प्रोसेस। क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ वर्क क्या है, 0, यू आर सप्लाइंग सर्टेन हीट एंड देयर इज नो वर्क। क्लियर? किसी कोई डाउट, इज देयर एनी डाउट? अभी तक किसी कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी। अगर मुझे रिवर्स करना होता, वो सब छोड़िए, अभी आपको इतना समझा गया, आइसोकोरिक बहुत आसान है। वर्क क्यों 0 हुआ, बिकॉज वॉल्यूम इनिशियल फाइनल क्या रहेगा, सेम, वर्क विल 0, आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट वी कम टू द एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए इन प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले हम वर्क डन पढ़ेंगे, देन इन वर्क डन लेक्चर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब आपको यही नहीं पता आइसोबैरिक प्रोसेस क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, देन हाउ विल यू कैलकुलेट द वर्क, बताइए। नेक्स्ट वी कम टू द एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है, कैन एनीबडी टेल मी
what is adiabatic process? A process where no exchange of heat between system and surrounding, जहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो हीट के इंटरेक्शन की, दैट प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखिए इसको समझते हैं क्या होता है। कंसिडर ए पिस्टन सिलेंडर असेंबली, ये पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, एंड देर इज नो, जैसे पूरे में क्या मैंने लगा दिया, आई अप्लाइड द इंसुलेशन। क्लियर? कोई डाउट किसी को? क्लियर? देखिए ध्यान से, Q इज 0 मीन्स पूरे में क्या लगा दिया आपने, इंसुलेशन। देयर इज अ पिस्टन, ये पिस्टन है आपका, यहाँ पूरे में क्या इंसुलेशन, देयर इज नो इंसुलेशन। क्या करेगा, इट विल नॉट अलाउ एनी हीट टू एंटर और एनी हीट टू गो आउट और एनी हीट टू गो इन। क्लियर? अब ध्यान से देखिए कि तो वर्क कैसे होगा। यू इंक्रीज सम पिस्टन, देखो आपने यहाँ से क्या किया, यू अप्लाई सर्टेन वेट ओवर दिस पिस्टन, यू डू सम वर्क। आपने क्या करा, यू डू एक्सटर्नली सराउंडिंग से क्या हुआ, सम वर्क। ये मेरा क्या है, दिस इज द पिस्टन सिलेंडर असेंबली एंड दिस इज माई सिस्टम, दिस इज माई सिस्टम। क्लियर? यू आर डूइंग सम वर्क, यू आर टेकिंग सम वर्क फ्रॉम द सराउंडिंग। यहाँ सराउंडिंग से वर्क आएगा, मतलब ये कुछ हमने क्या करा, सम ग्रेन, सम पिस्टन के ऊपर सम वेट वी अप्लाइड, उससे क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, ये पिस्टन कहाँ जाएगा, इट विल गो डाउन। वी आर पुटिंग सम वेट ओवर द पिस्टन बाय डूइंग सम वर्क। व्हाट हैपन, द पिस्टन विल गो डाउन। पिस्टन क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अगली पोजीशन ये हो जाएगी इसकी। देन यू आर सीइंग दैट इनिशियली क्या हमारा वॉल्यूम ये था, फाइनली क्या हो जाएगा, दिस इज माई वॉल्यूम। तो V1 इज लेस देन V2, सॉरी V2 इज लेस देन V1, बट प्रेशर क्या रहेगा, फाइनली प्रेशर क्या करेगा, इट इज इंक्रीजिंग। क्लियर? तो आप देख रहे हैं, इफ यू वांट टू ड्रॉ द कर्व, यहाँ देखिए प्रेशर फाइनली क्या है, सॉरी फाइनली प्रेशर बढ़ जाएगा बिकॉज कोलिजन बढ़ जाएंगे, यू आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या कम हो गया, देन फाइनली प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी फाइनली बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, देयर इज नो हीट वी आर पुटिंग टू द सिस्टम, कोई हीट ना तो हम सिस्टम को दे रहे ना हम सिस्टम से ले रहे, बट स्टिल टेम्परेचर राइज, वाई, बिकॉज ऑफ दिस वर्क। क्लियर? सो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जूल्स हीट लॉ। वहाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू जूल वर्क डन इज इक्वल टू हीट, वर्क इज इक्वल टू हीट कैसे होता है, आई विल टेल यू। बट इन दिस लेक्चर ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स, हाउ टू ड्रॉ द पीवी कर्व। मैं यहाँ आपको वर्क निकालना नहीं सिखा रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू ड्रॉ द पीवी कर्व। तो देखिए इसका अगर मुझे कर्व ड्रॉ करना, देखिए प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इट इज समथिंग लाइक दैट, इनिशियल फाइनल। एरिया अंडर कर्व निकाल लीजिए, यू गेट द वर्क। क्लियर? इन द रिवर्स मैनर में क्या हो जाएगा, तो इससे क्या बोलेंगे, देखिए रिवर्स मैनर में क्या हो जाएगा, दिस इज द एक्सपेंशन, इनिशियल फाइनल, प्रेशर वॉल्यूम। क्लियर? अब देखिए दिस इज नोन एज, इसे क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक। आपने बहुत सुना होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक के लिए मतलब वी आर कंप्रेसिंग द गैस, हियर दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्लियर? किसी को डाउट? एनी डाउट बच्चों? ओके, we understand what is isobaric process, we understand isochoric process, we understand adiabatic process. Now we will come to the polytropic process. तो देखिए polytropic process एक ऐसा process है that exist in between
एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, याद रखना ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, इट इज़ सिमिलर टू इन बिटवीन, ना तो वो पूरी तरह आइसोथर्मल होगा और ना ही एडियाबैटिक। क्लियर, इट इज़ इन बिटवीन, लिख लेना, ठीक है, यू कैन राइट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्लियर, देखिए ये क्या है, इट इज द प्रोसेस इन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर, एडियाबैटिक प्रोसेस। कभी कोई, देखिए ये तो हो गया, चलो इसकी बात है, कभी कोई आपसे इक्वेशन पूछने लग जाए, इफ somebody asks you the write the equation of isobaric process, write the equation of polytropic process, तो घबराना नहीं है, you are not supposed to fear, you just tell them, मान लो किसी ने पूछ लिया प्लीज सर राइट द आइसोथर्मल इक्वेशन, तो देखिए बहुत आसान है, ये लिख दीजिए T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सिंपल आइसोथर्मल इक्वेशन हो गई। आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या होगी, यही होगी। आइसोबैरिक पूछ ले, आइसोबैरिक क्या होगी, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक लाइन में पूरा आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया। कोई पूछ ले आपसे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, सिंपल आप कह दीजिए इसकी इक्वेशन क्या होती है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर, गामा क्या होता है, स्पेसिफिक CP अपॉन, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट। क्लियर, गामा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, CP क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CB क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर, इतना याद रखना। इक्वेशन आती है P1 माइनस गामा, T गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर, एक देखिए ये इक्वेशन कैसे आई, सिंपल, अब टॉप वाली इक्वेशन है PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। क्लियर, अब देखिए P की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T और V रखिए, क्या होगा इस इक्वेशन में, nRT अपॉन V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर, तो यहाँ क्या आएगा, V टू द पावर गामा माइनस 1, V की पावर गामा माइनस 1 क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। एक इक्वेशन और आ गई, TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक इक्वेशन और आ गई। अभी मैंने प्रेशर को रिप्लेस किया, नाउ यू रिप्लेस वॉल्यूम, तो क्या आएगा देखिए, इफ आई रिप्लेस वॉल्यूम तो क्या होगा देखिए, V की वैल्यू क्या आएगा, nRT अपॉन P। क्लियर, कांस्टेंट। तो यहां से देखिए क्या आएगा इक्वेशन, P1 माइनस गामा, T गामा कांस्टेंट। क्लियर, कोई डाउट किसी को, इज देयर एनी डाउट, प्लीज आस्क मी। तो 3 इक्वेशन मैंने बता दी यहाँ से आपको क्या क्या है। एडियाबैटिक कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, इन एग्जाम दिस इज मोस्टली आस्क, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P1 माइनस गामा, T गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एक आ जाएगा TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर, क्लियर, देखिए, सो दीज आर द 3 इक्वेशंस विच यू नीड टू रिमेंबर। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, दिस इज सिमिलर इन बिटवीन, क्या बोला मैंने आपको, इट इज इन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसकी इक्वेशन बहुत आसान है। एडियाबैटिक इक्वेशन में कुछ नहीं करना, गामा की जगह क्या रखेंगे, पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट, गामा की जगह क्या रखना है, K। क्लियर, इस K की वैल्यू क्या होगी, 1 से गामा के बीच मिलाई करेगी। क्लियर, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, क्या होगी पॉलीट्रॉपिक की, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P1 माइनस K, T K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर, T
v की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. क्लियर. आइसोथर्मल की कभी कोई इक्वेशन फॉर्म में पूछे देन गिव दिस आंसर. क्लियर. कोई डाउट. अगर मान लीजिए कोई आपसे, अब देखिए मैंने सारे कर्व को, जितने भी कर्व मैंने आपको शो किए थे पहले, पीवी कर्व, आई कैन ड्रॉ ऑल द कर्व्स, आई कैन ड्रॉ ऑल द कर्व्स ऑन अ सिंगल डायग्राम. चलिए वन बाई वन मुझे बताइए, प्लीज टेल मी वन बाई वन कि जो मैंने पहला कर्व ड्रॉ किया है पीवी वर्सेस, सारे के सारे कर्व, ऑल कर्व्स आई ड्रॉ ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम पीवी कर्व. टेल मी वन बाई वन. क्लियर. अब देखो बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर कैसे पहचाने कि कौन सा कर्व क्या है. कुछ नहीं करना, सिंपल. देखिए यहाँ से एरो लगी रहा है, देखिए वॉल्यूम, सारे कर्व एक्सपेंशन कर्व है. क्लियर. ऑल प्रोसेस आर हैपनिंग इन द एक्सपेंशन मोड. ये देखिए यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस हो रहा है. यहाँ क्या है देखिए आप, वाई एक्सिस पे प्रेशर कांस्टेंट है. देखो प्रेशर वाली लाइन क्या है, प्रेशर चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक. इसको इनिशियल मानिए, इसको फाइनल मान लीजिए. प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, नहीं हो रहा. सो दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस. क्लियर. ये बताइए कि ये कैसा प्रोसेस होगा. कैन एनीबडी टेल मी. देखिए ये इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया. ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, बट प्रेशर कांस्टेंट नहीं है. तो दिस इज द आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस. क्लियर. अब कंफ्यूजन कहाँ आएगा बच्चों को, ये और ये सेकेंड एंड फोर्थ. होमवर्क ये है आप लोगों का, ये है होमवर्क आपका. यू नीड टू टेल मी, मुझे आपको ये बताना है कि ये कर्व सेकेंड एंड फोर्थ विच वन इज आइसोथर्मल. क्लियर. अगर आपको आइसोथर्मल एडियाबैटिक पता चल गया कौन सा है, देन यू कैन इजीली टेल विच वन इज पॉलीट्रॉपिक. इस बता सकता हूँ. देखिए ये जो सेकेंड वाला कर्व है, दिस इज एडियाबैटिक, एडियाबैटिक. क्लियर. यहाँ से देखिए थोड़ा, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, ये एडियाबैटिक हो सकता है, आइसोथर्मल. आपका होमवर्क ये है, विच वन इज सेकेंड वाला कर्व एडियाबैटिक होगा, आइसोथर्मल होगा, या फोर्थ वाला कर्व आइसोथर्मल होगा, एडियाबैटिक होगा. अगर ये एडियाबैटिक है तो ये आइसोथर्मल होगा, इसके बीच का पॉलीट्रॉपिक होगा. इतना कंफर्म है. तो एक आपको कंफर्म करना है कि मान लीजिए जो फोर्थ कर्व है ये एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है. अगर मान लीजिए आपने ये बोला ये आइसोथर्मल है तो ये पॉलीट्रॉपिक होगा, कंफर्म. ये एडियाबैटिक होगा. लेकिन अभी मैं कुछ नहीं, आपको हिंट नहीं दे रहा. आई जस्ट गिव यू द कर्व्स. मैंने आपको बस हल्की सी हिंट दी थी. कर्व्स में इक्वेशंस बताई कई सारी. ऑन द बेसिस ऑफ दोज इक्वेशन यू नीड टू टेल मी विच कर्व इज ऑफ विच. इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको ये बताऊंगा कि वाई दिस कर्व इज आइसोथर्मल कर्व, वाई दिस कर्व इज एडियाबैटिक कर्व. आपका क्वेश्चन यही है वाई, कि ये सेकंड वाला कर्व अगर एडियाबैटिक है तो क्यों एडियाबैटिक है, फोर्थ वाला कर्व आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल क्यों है. इन दोनों का तो श्योर है, वी आर श्योर. लेकिन इन दोनों का कन्फ्यूज़न है ना, क्योंकि आपको पता है कि दोनों कर्व जो आइसोथर्मल है उसमें भी ऐसे जाता है. नेचर क्या होता है, इसमें भी नेचर होता है ऐसे ही, एडियाबैटिक में प्रेशर के साथ, अगर एक्सपेंशन में देखा जाए तो कैसे पहचाने भैया, पूछोगे ना भैया कैसे पहचाने. हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि विच वन इज एडियाबैटिक, विच वन इज आइसोथर्मल, हाउ. तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे. यू नीड टू गो होम and try to find out the answer of this question, and we will discuss in the next lecture. Clear. Once again, thank you so much. If you have any doubt, you can ask me in the personally, or you can ask me in the chat box. Thank you. Thanks a lot.